Assalamualaikum guys, welcome back to another new episode of Student Lounge. Today with us is Bisma Kamar. Bisma Kamar is a IUBM student and doing MBA in management. So how are you Bisma? I'm good. How are you? I'm good too. So मेरा वही सवाल हर स्टूडेंट से होता है और आपसे वही सवाल है मेरा पहला कि who is Bisma, what is Bisma and why is Bisma? Very interesting way to have an introduction. So who is Bisma? Bisma is currently, as you mentioned, a current MBA student. I'm in my last semester doing it from here, and I also did my bachelor's from CBM. I'm currently serving as Pakistan's youth representative to United States, to UN and its other bodies, and I'm in the field of learning and development. And why is Bisma? Because I think वो करो जिसमें आपका दिल खुश करे. So I'm always just exploring myself. Okay, so interesting background. Bisma, तो if I ask you, we go back in time and ask you के how was Bisma as a kid, तो वो describe कैसे करेंगे? I would say Bisma as a kid was someone who was extremely shy and was very anxious ke what if something goes wrong and what if I fail. But then I think ke over time वही चीज़ change हुई है because that concept came ke it's okay if you fail but what if you fly. Okay. So that was Bisma as a kid. तो if I call your mother right now and ask के Bisma कैसी है तो क्या बोलेंगे बोलते हैं? वो कहेंगे कि now Bisma is less anxious and Bisma is always on to something. ठीक है. She's always exploring and she's always on an adventure. The most spontaneous things you would find me doing. Okay. कोई ऐसी मेमोरी याद है, कोई ऐसी चीज़ याद है कि उससे डिस्कवर किया अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ या मैं ये अच्छा कर सकती हूँ as a kid? As a kid, yes. I remember कि I was probably like 10 years old or even below that, and हमारे एक स्कूल में एक डांस क्लास हो रही थी and उसमें there was an event. तो जो host था वो उस दिन fell ill. So my teacher came up to me and she's like, Bisma, can you fill in? वो हमेशा यही story होती है filling in वाली. And it was very unscripted, it was very spontaneous and I just took a leap. मैंने बोला कर लेते हैं. And then I realized कि जब सबने कहा कि यार अच्छा कर रही हो तो मैंने बोला कि तो मज़ा भी आया मुझे करने में. So I explored that part of me that time. Okay. So why IUBM? I think because why not? नहीं वो सही है लेकिन how did you discover IUBM? That is the question. So I discovered IUBM because very honestly I had a lot of peers and बहुत ज़्यादा family friends थे जो कि IUBM से graduate हुए हुए थे and I saw कि IUBM has a good work life balance as well. तो मज़े का लगा. मैंने बोला कि I think this is some place I would like to be. ठीक है. And why BBA? Because I always wanted to go into the business field. I think BBA maybe specifically branding, marketing was something जो excite करता था and मैं explore करना चाहती थी उस field को. तो if I ask you when you were in school तो O levels या metric yes inter? A levels A levels तो A levels में वही business ही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है? Commerce, accounting, economics and business. तो उससे पहले interest कैसे हुआ इसमें मतलब business ही क्यों पढ़ना था? Interest ऐसे हुआ कि as every kid's story entered into a different field. मैंने O levels में science ली and chemistry वगैरह पढ़ते पढ़ते I realized कि हो रहा है but I don't see कि what's next. I don't see myself in it. And पूरी family business fraternity की थी, father से लेके siblings. तो वो बातें सुन सुन के ना आप कहते हैं कि अब I want to explore that too. That's how I came. तो science से change कैसे किया मतलब what changed you? So मैंने first year of O levels मैंने exams भी दिए थे science के. What changed me was कि I remember कि मेरे siblings, I have 2 siblings, उनके exams चल रहे थे and they were in the same class, so they used to be talking a lot about it. Case studies की बात हो रही होती थी तो I realized कि वो सारी बातें was something के पढ़े बगैर ना मुझे थोड़ी सी understanding feel हो रही थी. तो I said कि this is interesting, something that's practical as well, something that you can make a career out of. तो इसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए. तो देन आई स्विच्ड. आई टुक दैट फेथ एंड मैंने स्विच कर लिया. ठीक है. हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? वी आर 3 इन टोटल. डिस्क्राइब दोनों को. आई वुड से तीनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं बट देयर इज़ वन थिंग दैट्स वेरी कॉमन कि वी ऑल लव टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स. सारी crazy things you would find us doing. Brother, complete corporate marketing guru, you can say. Sister has been a philanthropist and education is by heart. And then there comes me, who's an amalgamation of both. So you're the youngest one? Yes. So कैसा feel होता है दो बड़े बहन भाइयों के साथ? I think कि
goes both ways. बहुत ज़्यादा आपको पैम्परिंग भी मिलती है बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि जो वो लोग करके आ चुके हैं ना, सो देन आपके लिए रास्ता बनता जाता है कि यू नो दिस इज समथिंग आई कुड एक्सप्लोर, सो हैज़ बिन वेरी गुड इन दैट टर्म्स. तो अगर मैं उनसे पूछूं कि डिस्क्राइब बिस्मा, तो वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे बिस्मा इज़ समवन हु इज़ वेरी क्यूरियस, मतलब क्यूरियस के वो लोग भी क्या कर रहे हैं एंड क्या करना है, एंड आई वुड से द लाउडेस्ट इन द हाउस. ओके, यस, वेरी ऑनेस्ट. इसकी वजह क्या स्टोरी, आई वांट टू नो. इसकी वजह ये है कि एक सोशल बटरफ्लाई घर में एक ही होता है, तो वो दोनों की जो टेंडेंसी थी ना वो एक में आ गई है. ठीक है. एंड आई थिंक कि आई ऑलवेज push them as well कि you know socialize करो and do these things, so they know कि बिस्मा is the loudest. ये घर पे होती है तो आवाज़ आ रही होती है. शोर होता है, जस्ट लाइक माय ब्रदर. Yes. वो घर पे आता है, वो शोर होता है. पता चल जाता है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसी बात है. ऐसा ही है. सो बिस्मा आ जाती है IUBM के अंदर और उसका पहला दिन होता है. Yes. Did you remember that first day? Yes, first day I think सबको ही याद रहता है. What's the story? I remember first day सैक के कैफ़े में एंटर हुई एंड आई सॉ के वहाँ पे रैगिंग चल रही थी. फर्स्ट डे था, मैं थोड़ी लेट आई थी उस दिन, एंड आई सॉ के लोग एक दूसरे से पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे हैं. सो देयर वाज अ ग्रुप दैट केम टू मी एज वेल एंड सेड कि आप लंच दिला दें, बट उल्टा उनसे दोस्ती हो गई उसी कॉन्वर्जेशन में. दे वर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड आई वाज अ फ्रेशी, सो उनकी वजह से आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया तो मेरी जो फ्रेंडशिप्स थी ना वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुई. सो आई थिंक अ वेरी वेरी गुड फर्स्ट डे. कोई फेमिलियर फेस मिले जो आपके साथ A levels में थे? यस, बिल्कुल. वो आते के साथ ही मिल गया था, वो O levels के क्लासमेट राइट व्हेन आई एंटर्ड. सो इट वाज एक्चुअली फन बिकॉज हम दोनों साथ एंटर हुए थे सैक में एंड वी वर लाइक चलने लेट्स एक्सप्लोर नाउ CBM टुगेदर. सो वेरी नाइस. तो कोई ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल जब A levels O levels में थे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन CBM में जाके अच्छे दोस्त या IUB में आके अच्छे दोस्त बन गए, ऐसा हुआ कुछ? यस, ये मैं कहूँगी बिकॉज ये जो एक दो की मैंने नाम लिया उसमें यही हुआ कि यू नो व्हेन यू एंटर अ न्यू प्लेस एंड एक कॉमन आपको मिल जाता है कोई फेस, तो फिर देन यू स्टिक अराउंड, यू एक्सप्लोर अराउंड, एंड हमने यही किया. तो फिर यहाँ पे ओवर द 4 years बहुत अच्छी दोस्ती डेवलप हुई. बिल्कुल ऐसे ही है. सो बिस्मा जो है यूनिवर्सिटी आ गई, पहला साल गुजर गया, सेकंड सेमेस्टर में आ गई, फिर उसके बाद थर्ड भी गुजर गया, फोर्थ में आ गई. तो बिस्मा ने 2 साल में अपने अंदर क्या चेंज देखा? 2 साल में आई थिंक थोड़ी सेल्फ अवेयर हो गई थी. सेल्फ अवेयर एज इन के जो पढ़ रही हूँ या जो कर रही हूँ, सो इसका लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज ऑनेस्टली BBA में एडमिशन ले लिया था, बट आई वाजंट श्योर कि करियर पाथ क्या होगा. तो उस टाइम पे रियलाइज्ड कि मुझे थोड़ा सा ये जर्नलिज्म, द यू नो सोशल एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में क्या पसंद है. तो यहाँ पे सोसाइटीज़ थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ देम, वेरियस सोसाइटीज़. सो उससे मुझे सेल्फ अवेयरनेस मिली. कौन सोसाइटी का पार्ट? आई वाज अ पार्ट ऑफ LPSS, वहाँ से स्पीकिंग का हुआ. देन आई वाज अ पार्ट ऑफ डिजिकॉन, वहाँ से एक डिफरेंट एंगल एक्सप्लोर किया. एंड EPS में ज्वाइन करके फिर मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, बट ये 3 थी. ओके, सो क्या सीखा पूरे उस पे? आई थिंक LPSS और डिजिकॉन में तो ये सीखा कि हाउ टू मैनेज टीम्स. ठीक है. बहुत अच्छे से, एंड इवेंट प्लानिंग. आई थिंक दैट वाज अ न्यू स्किल दैट आई लर्नड एंड दैट लेड टू ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेड पार्टी आफ्टर, जब हम कोविड से आए थे. तो जो फर्स्ट टाइम हमने ग्रेजुएशन पार्टी वीक किया था, सो आई वाज द लीड फॉर दैट. तो वो सारी चीज़ें मैंने सोसाइटी से सीखी थी. ठीक है. अच्छा, तो जैसे A levels में बिजनेस पढ़ के आए थे, तो क्या BBA में ऐसा आके लगा दिस इज नॉट फॉर मी, या मैं कुछ और कर लूँ, या ये मुश्किल हो रही है, या फेमिलियर सा लगा, या लगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इजी लग रहा है, कैसा था ऐसा? आई थिंक वेरी ट्रांसपेरेंटली A levels करने के बाद मुझे ईजी लगा. फर्स्ट के 4-5 सेमेस्टर्स इलेक्टिव्स पे आके थोड़ा सा ऑफ कोर्स डिफरेंट था, लेकिन वो सेम ही चीज़ें थी, दे वर ब्रोकन इनटू डिफरेंट कोर्सेज. सो या वेरी इजी. या ओके. कोई कोर्स, कोई फेवरेट कोर्स हो गया, अच्छा यार ये तो बहुत आसान है, ये तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं, एग्जाम ऐसे दे दूंगी जाके? आई वुड से कि मार्केटिंग के जो क्लब ऑफ कोर्सेज थे वो मुझे लगता था कि सारे उसमें ना, मुझे लगता था कि इट्स वेरी फेमिलियर एंड उसमें पढ़ने की इतनी नीड होती नहीं थी, बल्कि पढ़ाती थी. ओके, किसको पढ़ा रही भी? पूरे बैच में जितने भी लोग होते थे वो दैट इज समथिंग आई वाज नोन फॉर कि मैं पढ़ाती थी एक दिन पहले. तो एग्जाम से पहले ना एक ग्रुप लेके मैं बैठी हुई होती थी, तो मेरी रिविजन वैसे ही हो जाती थी. IUBM का क्या चीज़ पसंद आई थी जब सोचा कि IUBM में चले जाती हूँ, या कैंपस लाइफ, या कोई ऐसी चीज़, क्या चीज़ ऐसा था?
आई थिंक IUBM में एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ये था कि मेरे टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, ठीक है। इवेंट्स होते थे, फ्रॉम कॉन्सर्ट्स टू दीज लिटरेचर फेस्टिवल्स. सो आई थिंक ये एक फैक्टर था कि ठीक है। मुझे थोड़ा सा कन्विंस कर रहा था कि आई थिंक आई वुड हैव अ गुड सोशल लाइफ हियर. तो अब लगता है कम होते हैं चीज़ें? अब आई थिंक सिंस थोड़ा मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया है MBA में आके व्हेन यू आर वर्किंग, सो आई थिंक कि मे बी होता हो, लेकिन मैं अब इतना इन नहीं होती. ठीक है। लेकिन मैंने अपने टाइम पे कोई इवेंट नहीं छोड़ा था. डू यू थिंक ये कोविड के बाद से ये थोड़ा सा हुआ है, Yes. कम हुई चीज़ें? Definitely. हाउ वाज योर कोविड? My COVID was easy grades. ठीक है, ओके। But I would say कि COVID was very interesting because कभी सोचा ही नहीं था कि ये हम एक इन पर्सन क्लास से एक LMS पे Yeah. जाएंगे. So I think वो एक अगेन एक सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन वाला टाइम था कि ये भी हो सकता है. एंड उस टाइम पे आई गॉट टू डू लॉट मोर सोशल वर्क. सो आई थिंक कि वो एक जो पोर्टफोलियो था ना, मैं वहाँ पे थोड़ा इन्हांस कर पाई थी. तो हाउ डिड यू यूज दैट कोविड का टाइम फॉर द पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो में Yes. क्या किया, मतलब क्या 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 काम किया उस कोविड के अंदर? सो उस टाइम पे पहले यूनिवर्सिटी होती थी तो कोई भी आप क्लब्स या कुछ भी ज्वाइन नहीं कर पाते थे. सो मैंने उस टाइम पर आई रिमेंबर कि रोटरी ज्वाइन किया था. ठीक सो है। रोटरी में फिर मैं बहुत एक्टिव हुई थी एंड हमने उस टाइम पे कोविड से ही लिंक्ड प्रोजेक्ट्स किए थे. लाइक फॉर एग्जांपल वी सेट अप लाइक डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स. वी हैड के अलखिदमत के साथ देयर वाज अ पार्टनरशिप ऑफ ठीक है। सेटिंग लाइक अ कंप्यूटर लैब. सो इस तरीके के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे विच काइंड ऑफ गिव मी अगेन अ लिटिल एक्सपोजर ठीक कि है। हाउ आर थिंग्स डन. ठीक है। तो और एक अच्छा टीम बन गई थी विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. सो आई थिंक अ गुड नेटवर्क वाज फॉर्म्ड एट दैट टाइम. ठीक है, दोस्त बने हैं अच्छे? यस. कोई है ऐसे नाम लेना चाहूँगे बारे में? क्या दिस इज लाइक, मतलब अब मैं इनके बगैर रह नहीं सकते, ऐसे दोस्त में भी है? बिल्कुल. आई थिंक कि वो जो डे 1 वाले जो सैक कैफ़े में मिले थे ना, सो बिल्कुल सुकैना हो गई, रमशा, हमजा, मुस्कान, जैन, वरीशा, लाइक दीज वर दैट वाज अ ग्रुप दैट वाज फॉर्म्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7 years now ओके, माशाल्लाह। and it's still intact. ठीक है। तो बिस्मा सेकंड ईयर कंप्लीट करती है, फिर अपने फाइनल ईयर में आ जाती है। तो बिस्मा ने क्या चेंज देखा 2 साल बाद, तो 4 साल बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर की बिस्मा थी और लास्ट सेमेस्टर की बिस्मा में क्या फ़र्क था? आई थिंक उस टाइम तक एक ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हाउ टू यूटिलाइज माई एनर्जी इन व्हाट आई वांट टू डू बट ऑल्सो टुवर्ड्स पीपल एज वेल. ये वाला फैक्टर 4 साल पहले नहीं था. 4 साल बाद थोड़ी सी बाउंड्री सेट करना समझ आ गई. ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं एंड हाउ टू एक्चुअली डिफाइन योर ओन पर्सनैलिटी फॉर व्हाट यू स्टैंड फॉर. तो आई थिंक वैल्यूज़, नॉर्म्स, वो सब चीज़ें थोड़ी डेवलप हुई ओवर टाइम. ठीक है। अच्छा, you started your BBA in 2018 Yes. and graduated in 22 22 and you started your MBA in, 23 स्प्रिंग. तो 1 साल क्या किया? एक साल ये किया कि आई वॉज वर्किंग. सो मैं ठीक है। आई वॉज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ L&D एंड बहुत अच्छा उसमें एक्सपोजर रहा. सो आई थॉट कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ एंड देन फिर आई शुड गो फॉर एन MBA. ठीक सो है। दैट वाज माई 1 year. तो वो क्यों नहीं किया जो हर बच्चा करता है कि बैचलर्स यहाँ से कर लें और मास्टर्स बाहर से कर लें? So I think coming back to IOBM से ज़्यादा coming back and staying in Pakistan was a personal decision because मेरी family US में होती है. I was born, I grew up there. तो IOBM में तो मैंने bachelor's कर लिया. फिर it was very understood कि अब मास्टर्स के लिए तो मैं वापस ही जाऊँगी. बट क्वाइट ऑनेस्टली आई थिंक कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी यहाँ affiliations हो गई थी इन दिस L&D एंड सोशल डोमेन कि आई फेल्ट कि दिस इज़ व्हाट आई एम रियली एंजॉइंग एंड मैं उस एसोसिएशन को ख़त्म नहीं करना चाहती थी. ठीक है। सो आई डेंट वांट टू मिस आउट ऑन माई एजुकेशन. मैंने बोला कि अ डिग्री इज़ अ डिग्री एंड IOBM से कर लेती हूँ, साथ ठीक साथ है। ये भी चलता रहेगा. सो बहुत अच्छा रहा उस सेंस में. तो why MBA? मतलब मुझे लगता है मास्टर्स का कोई रीज़न होता है किसी का Yes. करने का, तो व्हाई डिड यू डू इट मास्टर्स? आई थिंक मास्टर्स मैंने इसलिए किया था बिकॉज मेरा बैचलर्स जो था इट वाज इन मार्केटिंग. मार्केटिंग एंड आपको पता है कि बहुत जनरल होता है बैचलर. सो आई रियली डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट साइड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला साइड, एजाइल मैनेजमेंट. तो आई थॉट कि मैं मैनेजमेंट में MBA करूँगी बिकॉज इट वुड बी समथिंग नॉट टू फार अवे कि मैं अगर डेटा एनालिटिक्स से कहीं पे चली जाऊँ तो एक बहुत ही करियर शिफ्ट आना था. ठीक है। तो आई वॉज इन प्रॉब्ली इंटरेस्टेड इन दैट. आई न्यू माई फील्ड बट आई रियली वॉन्टेड टू लर्न अ लिटिल मोर इन टू दिस साइड. तो फिर मैंने इसलिए मैनेजमेंट उठाया एंड कोर मैनेजमेंट के कोर्सेज यहाँ से किए. ठीक है। लड़ाई हुई कभी? यूनिवर्सिटी में हाँ, कहीं भी? आई थिंक हाँ, ये तो ना बोलूँ तो फिर ये गलत बात होगी. यूनिवर्सिटी में? आई वुड से हाँ, पर्सनल प्रोफेशनल ये तो होती ही हैं I बट want to know a story.
इतने बहुत खतरनाक ना हो ज़्यादा। ख़तरनाक वाला नहीं, बट हाँ इस चीज़ में मैं कहूँगी कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, That's राइट. true. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, सेंसिटिविटी मैनेजमेंट उस टाइम पे आप सीखते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोसेस होता है. सो आई थिंक ये जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, दे कुड ईजिली बी टर्न इनटू जैसे ये ख़तरनाक वाली, लेकिन उस प्रोसेस में मैंने सेंसिटिविटी मैनेजमेंट सीखा. सो विद टाइम ऑफ कोर्स आई लर्न हाउ टू मैनेज माई इमोशंस बेटर, ठीक है, पीपल मैनेजमेंट. तो ये सारी चीज़ें हुई जिससे मैं कहती हूँ कि अब बेहतर है वो चीज़. ठीक है. बट हाँ, देयर वर इंस्टेंसेस, बिल्कुल ऐसी था. अच्छा, कोई ऐसी फन मेमोरी याद है आईयूपीएम की या दोस्त फ्रेंड्स के साथ, या कोई ऐसी मतलब याद रह गई एंड यू वर लाइक या दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम आई एम हैविंग या समथिंग? आई वुड से विदाउट अ सेकेंड थॉट द ग्रेड वीक. बिकॉज एक होता है कि ग्रेड वीक आपने बस इंजॉय कर लिया, एक होता है कि आपने करवाया. सो कोविड के बाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अब हम वापस उस इवेंट्स की That's true. तरफ आए. सो मी एंड मेरा एक फ्रेंड होता था हमजा, तो यू नो वी केम टुगेदर एंड हमने बोला कि कोशिश करते हैं, कोशिश में क्या है. सो वो जो कोशिश स्टार्ट हुई, सो दैट एंडेड अप इनटू एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ Okay. फुल फ्लेज ग्रेड वीक, जिसमें बहुत सपोर्ट भी मिला पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से कि ये हुआ. तो आई थिंक वो एग्जीक्यूशन में जितना मज़ा आया था ठीक ना है. मेरे फ्रेंड ग्रुप के साथ, वो मतलब पार्टिसिपेशन से मच बेटर था. कुछ हर्डल था, कुछ लगा कि अच्छा नहीं होगा, Yes. हो रहा है, क्या था? आई वांट टू नो फुल स्टोरी अबाउट इट. सो आई थिंक सबसे पहले द स्टेज वर्स के कन्विंसिंग कि भाई एक इन पर्सन ग्रेड वीक कर रहे हैं, क्यों करना है वापस, यू नो, मतलब वाई टेक अ रिस्क, ज़रूरत ही नहीं है, बैकलैश आ सकता है. सो उसमें मैं कहती हूँ कि मैम अंबर रज़ा, जवेरिया बेग, सबीना मोहसिन ने बहुत सपोर्ट किया. दे गेव टाइम एंड दे लिसनड, ठीक है. एंड उन्होंने बोला ठीक है ये आपकी पार्ट है, ये मेरी है, लेट्स फाइंड अ नेगोशिएशन. सो वो बड़ा मज़े का था. देन सेकंड पार्ट ये था कि हडल्स ये आए थे कि जब आप कर रहे होते हो, सो इट वाज अ वेरी स्मॉल टीम, एंड वॉल्टियर करने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम That's पे. true. That is so true. सो आई थिंक एग्जीक्यूशन फ्रॉम इवन द शर्ट प्रिंटिंग टू कि क्या टेंट लगेगा, क्या साउंड सिस्टम होगा एंड क्या फॉर्मेट होगा. तो जो मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप का नाम लिया था, हम वही 5-6 लोग थे, एंड वी हैड सपोर्ट फ्रॉम अ फ्यू डिजिकॉन के सोसाइटी मेम्बर्स. सो वो हडल था, बट इट टर्न्ड इन वेरी वेल के अच्छे लोग मिले, ठीक है. कम थे. एंड फंड रेजिंग में ऑफ कोर्स बिकॉज एक कॉस्ट इन्वॉल्व थी, ठीक तो है. फंड रेजिंग इज ऑलवेज अ चैलेंज, बट आई ठीक है. थिंक इट एंडेड वेल. ओके. कोई फन मेमोरी फ्रॉम यूएस? I would say the last 1 year has definitely been, I think, the most fun memory in terms of being affiliated with the UN, because बहुत ही different dynamic और एक different industry में enter होना, and कभी आपने वो वाला world देखा नहीं है मैंने. So वो मुझे बहुत मज़े का लगा कि you know ठीक है. seeing कि how actually the decisions are taken and how you can actually create a voice in that. So ठीक है. very So interesting. how did you decided to इसको join करती हूँ, ये इस तरह ये सब चीज़ें करती हूँ? आई थिंक कि आई वुड कम बैक टू जो मैंने जहाँ डिफाइन किया था कि हु इज़ बिस्मा, एक्सप्लोरेशन में हमेशा बीइंग क्यूरियस कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. मैं देखती थी एंड मैंने बोला कि जनरल असेंबली आने वाली थी लास्ट ईयर की, तो मैंने बोला कि यू नो एवरीवन इज़ गैदरिंग इन यूएस फॉर दिस फ्रॉम ऑल कंट्रीज़. सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यू नो आते हैं और हम फोरम्स पे बातें करके चले जाते हैं. ठीक है. मुझे बस एक पेन पॉइंट था जहाँ पे मैं इसलिए एफिलिएटेड हुई कि हर किसी के पास ना माइक नहीं होता, वो एक्सेस नहीं होता. वी आर सिटिंग हियर टुडे बिकॉज माशाल्लाह से यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म एंड आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू. बट आई फील कि आई वांटेड टू क्रिएट मोर प्लेटफॉर्म्स फॉर पीपल लाइक मी कि हु हैव एस्पिरेशंस एंड हु प्रॉब्ली वांट टू डू थिंग्स बट पीपल डोंट लिसन. ठीक है. सो वो जो एक पेन पॉइंट था, उसमें ही क्यूरियसली मैं उसमें एंटर हुई एंड मैंने बोला लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट नाउ. ठीक है. सो तो अल्हम्दुलिल्लाह. इसी से सवाल निकालूंगा कि you joined this, what do you want to achieve out of it? I want to bridge the gap between dreams and opportunities. ठीक है. And that's a simple statement that defines कि जो मैं कर रही हूँ इसके पीछे ये एक रीज़न है. तो उसको कैसे करना है, कोई प्लान क्या है, किस तरह करना है? आई थिंक कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं और हम ये बात भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करना नहीं आती हमें. बट व्हाट आई फील है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम होती है. लोगों को पता ही नहीं होता है कि यू नो स्पेशली एट दिस एज जो आपका जेनजी होता है फ्रॉम 18 to 30, पीपल आर स्टिल स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड कि यू नो what is for us. So I have been working in L&D वाली field, corporates, academic and then फिर अब ये UN वाला sector. तीनों की अगर मैं integration का एक जिस निकालूँ, it's के अवेयरनेस करवाना लोगों को, एंड देन फिर उनको नेविगेट करके अपस्किलिंग देम पर्सनली, प्रोफेशनली, एंड देन गिविंग देम दोज अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज. सो काइंड ऑफ क्रिएटिंग दिस नेटवर्क, इट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर.
Okay, you also mentioned about the conferences and everything. Yes. Can you tell us about something? So, in the last, I think, 1.2 years, I've been doing these learning and development conferences with PSTD. It's ठीक है. Pakistan Society for Training and Development. ठीक है. So, उसका concept ये होता है कि bringing the corporate industry and the academic and social sector together. Learning conferences होते हैं, but it's not just a 9 to 5, but it's beyond. Mentorship programs, pivot programs, career navigation programs. So, it's a full cycle, and उसमें ये होता है कि जब आप पूरी industry को बिठा देते हैं, so then policies are also implemented. That is so true. So we do these focus groups across Pakistan कि हम ये बात करते हैं कि what is the pain point, right? है. First we take out that primary research and उन pain points पे develop करते हैं ये programs. ठीक है. So alhamdulillah, it's been I think I've done 7 now, and 2 are more in pipeline. So inshallah, है. इस year के लिए there were 9, and alhamdulillah there have been over thousands of people जिनको हमने इससे Okay, engage that's किया good. है, and I see that impact being made through this platform. So what you want to achieve as a personal out of it? What's your I want to build a community. ठीक है. आई थिंक कि मेरा ये एक पर्पस होता है, चाहे इंडस्ट्री हो, अकेडमिक हो, द पीपल आई इंटरेक्ट, आई फील के टैलेंट इतना ज़्यादा है बट बहुत स्कैटर्ड है. सो यू नो, बिल्डिंग अ कम्युनिटी आउट ऑफ इट इज़ व्हाट आई एम इवन ट्राइंग टू डू स्लोली, ठीक है. ग्रेजुअली. एंड ये मेरा एक पर्सनल एस्पिरेशन है कि व्हेन आई लुक बैक वेयर एवर आई एम इन लाइफ, probably 10 years from now, ठीक so है. I would know कि अच्छा, I have a community of people, and it's a, you know, it's a nurturing community. I nurture them, they nurture me, so ठीक it's a है. two-way thing. And ये मेरा एक पर्सनल खुद का गोल है अभी. Okay. I told you to bring some pictures and everything. Yes, I Have it? actually printed Oh, it you out. printed it? Yeah. Okay. Let's start with this. So this is the photo. अब वो appear भी हो जाएगी वैसे. So tell me what is happening here. So in this picture, this is Bisma when she was in 2nd grade. ठीक है. And हमेशा बिस्मा की जो बर्थडे थी वो समर ब्रेक के फर्स्ट डे पे आती Okay. थी. So June 1st was जब US में, न्यूयॉर्क में वेकेशंस अनाउंस होते थे, and मेरी कभी भी बर्थडे नहीं होती थी. ठीक है. So this odd year, some things happened and we extended it. So I got to celebrate my birthday first time पूरे friends के साथ, class के Okay. साथ. So this was probably the happiest Bisma as a kid, because you can see she has Yeah. a huge cake and you know she's being the limelight. So ये एक मेरे लिए as a kid सही मैं है. मिस करती थी. So who is this kid? His name was Hashim. ठीक है. And coincidentally, he was a Pakistani. He was also a neighbor, and we're still in contact ठीक है. even all these years after. Okay. Yes. Okay. So what is happening here? So this is the photo, and tell me what is it? So this is also a very special memory because he's Munir Akram. He's the ambassador of Pakistan to UN, and ये इनका last tenure चल रहा था before he was about to, you know, go off. And I got to do his interview, the concluding interview with him as a youth representative. So I think कि वो एक बहुत it was an honor for me. And it was a very fun and very interesting conversation. So I still recall that as that. तो वो conversation का कोई part याद है, कोई ऐसी एक चीज याद रहेगी? Yes. What was that? I think कि उन्होंने हमेशा से एक मुझे एक बात बोली थी कि whatever you do, right, do it for yourself first. सही है. Be self-fulfilled and then fill the cup for others. ठीक है. Because हम लोग ये हमेशा बात कर रहे होते हैं कि we have this in mind and that, but he's like, it's important to be selflessly selfish. Okay. Because that is That when is you so can. good. Yes. Yeah. And he said तभी तो फिर you can be ready to, you know, serve others जब आप खुद content हो. So I carry it with me. अच्छा मुझे बात बताओ, you know spend a lot of time even मतलब अपनी पूरी सारी जिंदगी बाहर रही हो. Are people more patriotic there? What do you think? Yes, I think कि definitely मैं overseas पाकिस्तानी की अगर स्पेशली बात करती हूँ, because you know there's a lot to miss out when you're abroad. सही है. And miss out में I would say the culture, the festive and the emotional connect. वो वाली And चीज़ें food नहीं है. too. And the food. वहाँ पे बिरयानी is not बिरयानी. So definitely. I think कि फिर of course वो एक point पर आके अगर आप अपने routines में हो तो feel नहीं होगा. पर जब ये ईद, रमज़ान इस टाइप के festivals आते हैं तो everyone is looking back to पाकिस्तान में क्या हो रहा है. Okay. ये definite है वहाँ ठीक पे. है. अच्छा, this is the photo. अच्छा, I'm not gonna ask कि इसमें हो क्या रहा है. I just wanna ask you कि इसमें से कोई ऐसी किसी से कोई ऐसी कन्वर्सेशन की हो जो तुम्हें याद रह गई हो? बिल्कुल. द पर्सन राइट नेक्स्ट टू मी इन वाइट, एंड वो कॉन्वर्जेशन क्या बहुत ही एक कोइंसिडेंट वाली बात थी. सो आई वाज देयर. दिस वाज एन इवेंट हम यूएन में कर रहे थे, एंड हैप्पी आवर का नाम होता था. ठीक है. So she comes up to me and I come up to her and we've never met before.
एंड ये मुझे मिलते के साथ ही कहती है कि आई हैव सीन यू कहीं पे एंड आई हैव नोन यू. ठीक अब है. हम लोग आधा घंटा इस चीज़ को सोचने में लग गए कि हाउ डू वी नो ईच अदर, बट वी डू. एंड देन वी गॉट टू नो कि वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कनेक्ट. एंड ये भी पाकिस्तान कराची से ही है एंड ये IBA में होती थी. एंड Okay. हम लोग कभी मिले नहीं थे. वी हर्ड अबाउट ईच अदर एंड हम ऑल द वे न्यूयॉर्क में वहाँ पे अंडर द सेम प्रोग्राम Okay, ऐसे मिले. होता है, हाँ. बट सो इट वॉज अ वेरी कोइंसिडेंटल वो. एंड यू नो अ बडी फॉर अ लाइफ टाइम वाली बात रह गई. ठीक है. सो यही हुआ तो शी इज फ्रॉम वहाँ आल्सो कराची. तो पे. यस. कितना टाइम हो चुका था इस वक्त आपको यूएस में इस टाइम पे? इस टाइम पे आई थिंक मैं 4th मंथ में थी UN के काम पे. एंड व्हाट अबाउट हर? उसको भी आई थिंक 3rd मंथ हो चुका था. तो yes. व्हाट वाज दैट वन थिंग यू बोथ वर मिसिंग अबाउट कराची? We were missing the food. Yes. हमने सबसे पहले मिलके यही कहा वी आर लाइक यार वी मिस द फूड एंड लेट्स गो ट्राई सम देसी रेस्टोरेंट्स. ठीक है. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा. यही बात थी. Okay, this is last picture. So tell me. So this is a very, I would say, special but also very behind the story funny scene है इस पिक्चर के पीछे. So ये एक मैंने कॉन्सेप्ट निकाला था पावर आवर का, in Power which Hour. I bring women from all walks of life. Regardless कि कोई सी लेवल का हो, कोई ग्रास रूट लेवल का हो, but at the end of the day we're all women and we all need to be celebrated. That's true. So this was something I took out a baby segment of mine. अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करी थी, इसके बारे में बात करी थी. So पीछे 5 लोगों को आना था एंड 4 चेयर्स रख दी गई थी. ठीक है. एंड ये बहुत ही एक फ्लो में होना था. इट वॉज अ वेरी ड्रामेटिक सेगमेंट. अब वो जब एक आ गई एंड आई लुक बैक एंड आई सॉ कि पीछे चेयर नहीं है एंड आई कैंट से ऑन माइक नाउ कि भाई आप प्लीज़ चेयर ला के रख दें बिकॉज वो पूरा ड्रामेटिक्स वो होना था. सो ओनली आई नो कि मैंने किस तरीके से खड़े होकर पूरी स्क्रिप्ट को रिवाइंड किया है कि मैंने उनको अपने साथ खड़ा रखा है, हैड अ टॉक. सो अ वेरी स्पेशल बट फनी मेमोरी बिकॉज ओनली आई नो कि वो स्क्रिप्ट क्या थी और मैंने क्या कर दी. ठीक है. सो Thank you so much for bringing these photos. इसमें इतने सारे टीचर से पढ़ा है IOBM में, तो कोई ऐसी फेवरेट टीचर या कोई ऐसी चीज़ की टीचर की याद रह गई हो आप, क्योंकि आप काम कर रही हो तो वो जब काम कर रही हो जो वो ऐसा लग रहा हो कि या टीचर ने वो बताई थी ना बात, देखो वो होता हुआ दिख रहा है या समथिंग, तो कोई ऐसी चीज़ है? आई वुड से कि 2 फैकल्टीज़ जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ माइंड है, बल्कि 3. मैम जवेरिया बेग बहुत ज़्यादा आई थिंक बियॉन्ड, उनसे एक कोर्स किया था मैंने लेकिन रिलेशन उन्होंने ऐसा मेंटोर की तरह मेरे ठीक साथ है. रखा. सो वेरी नाइस. देन सर ताबिश मार्केटिंग में होते थे एंड जितना मैंने उनसे सीखा है ना मार्केटिंग, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल. ठीक है. सो वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज फ्रॉम हिम. एंड देन देयर वाज सर फवाद, उनके साथ मैंने यहाँ पे पढ़ा. सो आई थिंक कि इट हैज़ बिन अ ग्रेट जर्नी विद टीचर्स हियर. मतलब वो ऐसे टीचर्स हैं कि अब ग्रेजुएट हुए हुए भी कब टाइम हो गया है बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम. ठीक है. बिल्कुल. आपकी लाइफ से अगर मैं IOBM निकाल दूं तो क्या मिस कर रहे हो? IOBM Bisma is probably solo traveling Okay. and exploring different people. Not Okay. I would say not just places but people, because I'm someone who's very fond of history and like you know perceptions. तो I love having random conversations. ठीक है. तो मैं कहती हूँ कि मैं अपना कहीं ना कहीं उसी में अपना एक करियर बना रही होती. ठीक है. Going from one place to another, finding myself in the most random places ठीक with है. people. Yes. तो IOBM से रिलेटेड क्या मिस कर रही होती? IOBM से आई वुड से वो जो एक मेंटरिंग वाला एस्पेक्ट था ठीक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. एंड आई ऑलवेज फेल्ट व्हेन आई लुक बैक तो देयर इज़ यू नो अ होम. मुझे है. पता है मैं 6 साल हो गए IOBM में, मुझे पता है आई विल वॉक इन एनी डे एंड आई वुड गेट दैट वार्मथ. ये है. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बिस्मा के? I would say to do something of my own in the same learning and development field, community building wala aspect. But I would also say ke, you know, probably something in the, as a writer. This is Okay. something that it's very not there right now, but I'm an editor ठीक है. for articles and मुझे लगता है मैं इसको pursue करना चाहती हूँ. ठीक है. किस तरह के Definitely. आर्टिकल लिखना चाहता है? मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिटर एट द UN ब्यूरो ऑन एरियाज जहाँ पे द अनसेड एरियाज. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल एजिलिटी, राइट, वी टॉक अबाउट बर्नआउट, Okay. we talk about ke, you know, why expanding the you know table is important. So I think on areas like this जहाँ पे ठीक है. vocal होने की ज़रूरत है and unfiltered.
ठीक है. Let's say after 10 years or after 5 years, whatever, सही. you are thinking कि I need a advice. या मुझे कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे कोई बात बताए या कोई चीज़ बता दे. फिर आपको अचानक से याद आता है अरे सर शायन की शो में गई थी या शायन की शो में गई थी. तो वहाँ मैंने कोई अपने आप को बात बोली थी. You go on YouTube and see. तो क्या बात ऐसी करोगी? I would say something that I would always want to remember would be do it anyway, because there would always be people that would like you or not like you for who you are and what you're doing. And हम बहुत बार इस चीज़ को एक hindering factor बना लेते हैं. But I think you do it anyway. If your heart is saying it, go after it. Don't stop. Wonderful advice, and thank you so much Bisma for Thank coming you. on the show. It was a very wonderful conversation Thank you. and interesting. Likewise. काफ़ी सारी interesting बातें हैं, काफ़ी सारी interesting. मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा कि क्या है. And I really want whatever you want to do in your life, you do it, and I wish you all the best. Thank you so much. Likewise. Honored to be here. Thank you so much. So guys, this was Bisma. Bisma from she's also a student and she's also part of the UN. If you want to part of this show, we have created this Google form. Please write your story about it. Write anything you want to write it. हमें अगर interesting लगेगी तो we definitely call you on the show. So this was your host Shan Hussain signing off. Allah Hafiz.